आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लाल दरवाज़ा मंदिर के लिए किए मंजूर, अक़ामती स्कूल्स के मसाइल हल करने का दिया तयख़ुन। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस का अख्तिताम, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबाहिस का दिया जवाब। गैर मुसल्लमा मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ियों को दिया इंतबाह। BRS की अरकान असम्बली ने वज़ीर आला की तकरीर का किया बायकॉट, ऐवान में शोरगुल करते हुए किया वॉकआउट। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तज़यीन के काम का किया मुआयना। मुल्क भर में 1000 रेलवे स्टेशन की तज़यीन का काम जारी, मरकज़ी वज़ीर का बयान। बरहमपुर से दादर स्मगल किए जाने वाले बैन रियासती गांजे के रैकेट को किया गया बेनकाब। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली के बजट इजलास में बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आइमा और मौज़नीन के बकायाजात की अदायगी करें और जिन अफराद के साबिक़ में डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए उनके हवाले करने के इक़दाम किए जाएँ। शहर में ड्रग्स का मामला काफ़ी हसास होता जा रहा है। इस मामले से निमटने और शहर को ड्रग्स से पाक रखने के लिए सख्त कार्रवाई करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में फिर एक मरतबा लाल दरवाज़े की मंदिर की तामीर के लिए फ़ंड जारी करने, फ्रूट मार्केट को नई मार्केट में तामीर होने तक इसी मुकाम पर बरकरार रखने, खुली कुतुब शाह और LB स्टेडियम के हालात को बेहतर बनाने, ट्रैफिक के मसले को हल करने का मुतालबा किया। Sir, in Arogyashri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000. And you know, sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing 2,40,000. We know that that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogyashri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir. With a pension, sir. So now the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekhar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogyashri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day that Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekhar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त क्या राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते आप, क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते उनको याद करते, कैसी तकलीफ दी है साहब, हमारे स्टेट को ऐसा करें, ऐसा लेके चले गए. बट सर, आई वुड से आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दोज ग्रेट लीडर्स हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द स्टेट, सर. एंड Arogyashri is one of the wonderful work what Rajshekhar Reddy has done, sir. सर, ये आरोग्यश्री के लिए, सर, प्लीज डू सम करेक्शन, सर. ये गरीब है, सर, इसमें CCU, सर, critical care patient, sir, we are reimbursing only 10,000, sir. But the actual no profit, no loss, if we see, sir, 23,000 rupees a day is spent, ventilator charges, oxygen charges, doctor charges, nursing charges, bed charges, and then also the medication, दवाएं जो देते हैं, sir.
What are we reimbursing, sir? We are reimbursing only 11,000 rupees, sir. So ये health में, sir, if a government takes care of health and education with a pension to the old age, I think this will really help the poorest of poor people, sir. Sir, and about old city, sir, road widening I had mentioned, sir. रोड वाइंडिंग को 100 करोड़ देने के लिए बोला सर, मैं चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन के बारे में बोला सर. सर एक 200 करोड़ दीजिए सर. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज़ईफ हो रहा हूं, नौजवान था सर. आई वाज 26 years old when I got elected. That time I was told Charminar will change, Charminar will change. Now I'm in 50s, sir. I am changing, but the Charminar is not changing, sir. सर मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन सर प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस, सालारजंग के पास 1 ब्रिज और पुराने पुल के पास 1 ब्रिज, ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर सर चारमीनार के पेडेस्ट्राइजेशन को अच्छा करिए सर. आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट टूरिज्म पॉलिसी सर. नथिंग हैज बीन सेड. गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, 7 टूम्स के बारे में, ट्रैम के बारे में कुछ भी नहीं बोले सर उस ताल्लुक से भी. अब मैं ज्यादा अगर चीखा तो बोलते अकबर साहब गुस्से में खिलाफ जा रहे हैं. मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर, मैं काम चाहता हूं सर. वी वांट द वर्क टू बी डन सर. वी वांट ओल्ड सिटी टू चेंज. एवरीबडी हैज given us wonderful dreams. They showed us lovely. जैसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं साहब, वो उर्दू में बोलते हैं हथेली में जन्नत दिखाना. हथेली में जन्नत दिखाए, ओ जन्नत 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 बोले, बताए चले गए सर, नहीं हुआ. But sir, I am very thankful that Honorable Chief Minister Saab had laid the foundation for the Usmania Hospital. Sir, I thank you very much, sir. Sir, at the same time, sir, Nizamiya TB College Hospital is there. 90 crores we are asked for. Sir, one small NOC, sir. One small NOC is required from the GHMC hospital. GHMC for a construction of hospital. एक NOC देने के लिए हमको सता रहे हैं सर, उसमें याकुतपुरे में देने के लिए. सर एजुकेशनल कैंपसेस के लिए फलकनुमा में है सर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं. सर आई रिक्वेस्ट सर कि ये जो इश्यूज मैं उठाया हूं इसके ऊपर सर अगर तवज्जो नहीं देंगे सर तो कुछ भी नहीं हो सकता सर. एंड लास्टली सर, मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, व्हेन चंद्रबाबू नायडू साहब वाज द चीफ मिनिस्टर सर, दैट टाइम एंड व्हेन मिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब वाज देयर. और लास्टली सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें भी केसीआर साहब उठ के बोले अकबर साहब बड़े सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं. सर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, इतनी बड़ी शहर की मंदिर है सर, इतनी बड़ी सर, और वो उसके लिए एक मार्केट है, अफजल मार्केट. वहां पे जो लोग हैं आजू बाजू, उनको वहां पे ऑल्टरनेट लैंड देकर ये लाल दरवाजे की मंदिर को हम बड़ा बना सकते हैं सर. वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू 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 बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर. उन्होंने नहीं की. बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं किया. और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं. नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर. और आप आज देखिए कि वो मंदिर का काम भगवान जो है सो इस मुसलमान से ले रहा है, और मैं यहां खड़े रह के उसकी बात कर रहा हूं. मैं उम्मीद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर, और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर. थैंक यू वेरी मच सर. तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर के खुतबे के मुबाहिस का जवाब देते हुए मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर लाल दरवाजे के मंदिर की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया और कहा कि हम और अकबर साहब मिलकर मंदिर तामीर करेंगे और बीजेपी रुकन असम्बली शंकर दर्शन करेंगे. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आइमा और मौज़नीन के बकायाजात की अदायगी फौरी तौर पर जारी करने की अहदेदारों को हिदायत देने के अलावा रेसिडेंशियल स्कूल के मसले को फौरी हल करने की जिम्मेदारी सिटी इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर के हवाले की. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ड्रग्स के ख़ात्मे के लिए सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन देते हुए रियासत और शहर की आवाम को तयक़ुन दिया कि जिस उम्मीद से कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाया गया है इसे पूरा किया जाएगा. कर लेने का जगह है. अब सब ऑफिसरों को बुलाओ,
अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज दे के भिजाना है। वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का। फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा। एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का। और मार्केट का मैं आदेश दिया हूँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, टेम्पररी उनको परमिशन दे दो। कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ है, मैं भी जानता हूँ। जो इब्राहिमपट्टनम में नया मार्केट हम बना रहे, वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला हो गया तक कुछ समय लगेगा। मैं यहीं पर हमारा चीफ सेक्रेटरी सब ऑफिसर से कैलेंडर डेट बदलने से पहले आपको आदेश मिलने वाले, मैं यहीं से आदेश दे रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी को, जब तक वो मार्केट नहीं होगा जो इब्राहिमपट्टनम में जो बना रहे, तब तक ये लागू रहेगा। अकबर साहब आप भी वादा करना, फिर आगे शुरू होने के बाद, वहां शुरू होने के बाद ये भी रहेंगे वहां भी रहेंगे बोल के आप नहीं बोलना, आप खुद आप जिम्मेदारी लेके इन लोगों को वहां भेजना है। तो मैं आपको कैलेंडर डेट नहीं बदलने वाले, आज आदेश मिलने वाले हैं। मैं डिपार्टमेंट को मैं आदेश दे रहा हूँ, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। और रोड वाइडनिंग का तो मैं बोल चुका हूँ, रोड वाइडनिंग का भी। और ये वर्ल्ड बैंक हेल्थ के बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे दामोदर राजा नरसिम्हा जी, तो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम वर्ल्ड बैंक से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगे, 4,500 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया इसके फंडिंग के लिए, मीगर इंटरेस्ट, ये बड़ा पैसे आने वाले हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक पैसे से, जो भी अभी कैंसर केयर का बाकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कहा, उसमें हम ले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ये भी काम करेंगे। और रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं जिम्मेदारी दे चुका हूँ। स्कॉलरशिप से EWS का भी ये डिप्टी CM जी उन्होंने बात कर ले कि आपसे जो मीटिंग होगा उसमें काम करने वाले। और ड्रग्स के बारे में आप जो प्रस्ताव किए, उससे पहले कागज पे TGNAP का बना के छोड़ दिए, मैं आने के बाद उसका DG कैडर ऑफिसर को दिए। और 224 पर्सन्स को, मतलब डिफरेंट IPS से लेकर कांस्टेबल तक पूरा सिस्टम बने। नया पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है। हर दिन हर रात हर जगह में हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में भी हम लोग सडन इंस्पेक्शन किया और स्कूल ओनर से भी मीटिंग करवाया, जिम्मेदारी दी है। आगे उनके स्कूल में कहीं पर भी अगर कुछ भी गांजा का, कोकेन का और कोई भी कुछ मिले तो मैनेजमेंट को केस में रखने के लिए हम आदेश दे दिए। मैं तो कोई भेजा, कोई मुझे पता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, उनके जिम्मेदारी। लाखों में वो लोग फीस ले रहे, स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। स्कूल के कैंपस में कोई भी कुछ भी आ रहे, कुछ भी हो रहा है, उनके जिम्मेदारी है। जैसा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स टीचर है, साइकोलॉजिकल टीचर भी वहां पर रहना। बच्चों का साइकोलॉजिकल कुछ चेंज दिखे, उनके शक्ल में, उनके एक्टिविटी में कुछ चेंज बदले, तो उसको पकड़ना है कि उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस कुछ भी आए। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग लाखों में पैसे ले रहे हैं। घर में बाहर कुछ हो गए तो बात अलग है, स्कूल में भी ऐसा कुछ मामला आ जा रहा है। स्कूल्स एंड मैनेजमेंट का भी हमारे पुलिस कमिश्नर साइबराबाद एंड हैदराबाद एंड राजकोंडा कमिश्नर्स भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट को बुला के बिठा के बात किए। हम आगे आदेश भी दे चुका है। आगे हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर, किसी को छोड़ने वाले नहीं। इसमें तो आपको पता है, बड़े बड़े लोग फार्म हाउस में दावत किए तो भी पकड़ लिए, और जो भी कैसीनो भी चलाए तो पकड़ लिए। दुबई में जो जिसका डेथ हुआ, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मंगाया, उन लोग समझे वहीं पर लाश को दफन कर दिए तो ये मामला नहीं आता। दुबई सरकार से बात कर लेके पूरा जिम्मेदारी से ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगाया। आने वाले दिनों में हाउस में मैं रखूंगा कि कैसे कैसे दोस्तों से ये लोग, बड़े लोग बोले अरे अच्छा दोस्त को 10 रुपए दे के साथ में लेना, बुरे दोस्त को 10 रुपए दे के छोड़ देना, बड़े लोग यही कर सकते हैं। और ऑटोज भी जितना भी इलेक्ट्रिक ऑटोज खरीदेंगे उन लोगों को बैंक लोन का, नहीं तो 0% इंटरेस्ट का हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। आने वाले गरीब लोग जो ऑटो चला के जीने वाले हैं, टैक्सेस भी जो चलाने वाले हैं, ऊबर ओला, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदे तो कुछ इंसेंटिव देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि डीजल पेट्रोल गाड़ियों को शहर के बाहर हम भेजना चाहता है। और
15 साल के पुराना गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं होने देंगे आने वाले दिनों में अभी। और लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो मुख्यमंत्री का ने रहता है 20 करोड़ रुपए आज का आज मैं जीवो दूंगा, क्योंकि ये बात मैं बोल के निकल गए तो नहीं होने वाला है। अकबर साहब बोल रहे हम सुन रहे, बाहर जा रहे भूल जा रहे, नया नया मुद्दे उठ के आ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी को मैं आदेश दे रहा हूं यहाँ से लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड मुख्यमंत्री के जो निधि है उसमें से 20 करोड़ रुपए जो देना है उसके लिए जो कमिटी है, कमिटी के साथ साथ इंचार्ज मिनिस्टर पहले बैठना है, उसके बाद अकबर साहब और डिप्टी सीएम साहब बैठ के इसका आगे कैसे कार्रवाई करना है, कैसे डेवलपमेंट करना, उसका डिजाइन कैसे करना, क्योंकि नया हाईकोर्ट हम बना ले रहे, हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल का नया बना रहे। सो ऐसे हर जगह में ओल्ड सिटी में जितना भी है मिरालम टैंक के, मेट्रो रेल के, जो रोड वाइडन के, सब सारे करे। लाल दरवाजा भी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री को हम नहीं छोड़ना चाह रहे। जब ये सेक्युलर फैब्रिक में अगर जीवो में ये भी रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया, बिकॉज ऑफ हिज डिमांड और हिज रिक्वेस्ट वी आर गिविंग दिस जीवो आप रेफरेंस में रख दो, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस कभी रहा तो आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट बन जाएंगे कि जीवो में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो असेंबली में मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने वादे किए, बेस्ड ऑन दैट एश्योरेंस वी हैव रिलीज दिस फंड्स। लाल दरवाजे के बारे में वहां पर छोटे मोटे मुद्दा है तो लाल दरवाजा कमेटी के साथ साथ हमारे शंकर भी देख रहा है, शंकर को भी साथ में लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी मेरा, अकबर भाई का दर्शन करने का जिम्मेदारी आपका है। दर्शन करने का जिम्मेदारी उनको दे दे रहा हूं अकबर साहब, बनाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। बीआरएस रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी ने गवर्नर की तकरीर पर ऐवान में जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने में नाकाम है और रैतू भरोसा स्कीम को रूप अमल लाना तो दूर की बात है, रैतू बंधु स्कीम कई माह से बंद रहने की बायस किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस रुकन असम्बली को बताया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ करने के लिए फंड्स जारी किए हैं। మాట్లాడితే నేను ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా, నాకు కావాల్సిన యాంపిల్ టైం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. వారు మేము మాట్లాడిన దాంట్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వాళ్ళందరూ వస్తే 3000 రూపాయలు చేయమని చెప్పి వారు డిమాండ్ చేసి చేసిందా లేదా అని చెప్పేసి అడిగితే తర్వాత చెప్పండి అది తప్ప అన్ని విషయాలు చెప్పింది అధ్యక్ష. అంతే పచ్చి అబద్ధాలు, అంటే అవాస్తవాలు ఏం చెప్పిందంటే అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్రంలో 2014 తర్వాత ఏ వీసీ కూడా అపాయింట్ కానట్టు వీరు మాత్రమే వీసీలు 30 మంది వీసీలను గత 2014 నుంచి 2020 వరకు వీసీలను అపాయింట్ చేసి रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज असम्बली में इंकशाफ किया है कि साबिक़ वज़ीर आला KCR को उनके ख़ानदान वालों से ही जान का ख़तरा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी रखी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क पर कांग्रेस अरकान की तरफ से ऐवान में खैखे भी लगाए गए। అధ్యక్ష ఇక సెక్యూరిటీలు ఇవన్నీ మళ్ళీ సపరేట్గా నేను చెప్పదలుచుకున్న వాటి జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. సరే కుటుంబ సభ్యుల వల్ల ఆయన ప్రాణ ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆయన సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నాడు. సరే అది సహజం, అందుకే ఆయన దూరంగా ఉంటున్నాడు వాళ్ళకు చుట్టూ పోలీసు పహారాల మధ్య అధ్యక్ష. సరే అది వారి సమస్య అనుకోండి, నేను దాని జోలికి వెళ్ళ. दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जब गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर जवाब दे रहे थे, बीआरएस के MLAs ने उनकी तकरीर का बायकॉट किया। ऐवान में बीआरएस के अरकान असम्बली शोरगुल करते हुए बाहर निकल गए, जिसके बाद वज़ीर आला ने अपनी तकरीर को जारी रखा। बीआरएस पार्टी के वाकआउट और एहतजाज पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी एक वक्त इख्तिदार में थी लेकिन वो अब अपोजिशन में आ गई है। बीआरएस को 8 MP नशिस्तों का नुकसान उठाना पड़ा और अब वो इस वक्त मुर्दे खाने में है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने KCR के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हरीश राव और KTR ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने KCR के ख़िलाफ़ गलत कहा है, लेकिन उनकी ऐसी फितरत नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें। BRS రోజు
మార్చురీలో ఉందని నేను చెప్పిన అధ్యక్ష. దాన్ని ఒక వ్యక్తిని అన్నట్టుగాను, పెద్ద ఆయన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు నేను అన్నట్టుగా హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు చిత్రీకరిస్తున్నారు అధ్యక్ష. అంత కుత్సిత స్వభావం నాకు లేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు ప్రసంగం సందర్భంగా వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. గౌరవనీయులైన గవర్నర్ तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात के तनाजुर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि किसान 20,000, 50,000, 1 लाख और 2 लाख रुपए तक के कर्ज लेते हैं और जब कर्जदार उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो उसी को तौहीन समझकर किसान खुदकुशी करते हैं. కానీ రైతు 20,000, 50,000, 1,00,000, 2 లక్షలు అప్పు చేస్తే అప్పులవాడు ఇంటి ముందుకు వచ్చి నిలబడితే ఆ ఆత్మ గౌరవాన్ని చంపుకోలేక అప్పులవాడు ఇంటి ముందు నిలబడితే తలెత్తుకొని అబద్ధాలు చెప్పలేక ఈనాడు నా రైతాంగం ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు అధ్యక్ష. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में अपने जवाब के दौरान साबिक़ वज़ीर आला KCR को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया. रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 दिसंबर 2023 से अब तक KCR ने 57.84 लाख रुपये की तनख्वाह ली है, लेकिन वो सिर्फ 2 बार असम्बली आए और रियासत में कहीं बाहर नहीं गए. उन्होंने कहा कि अगर KCR असम्बली आते और कृष्णा आबी मसले पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं, अगर वो हमें गलत साबित करें तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं. తీర్పిచ్చింది. వారు 57,84,124 రూపాయలు జీతభత్యాలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. 2 సార్లు ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇప్పటి వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ జీతభత్యాలు తీసుకొని ప్రజల్ని గాలికి వదిలేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కర్మకు వదిలేసిన ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈరోజు వాళ్ళను ఇట్లా తయారు చేసి రేబీస్ వ్యాక్సిన్ రియాక్షన్ వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తుంటే ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష? ఇక సెక్యూరిటీలు ఇవన్నీ మళ్ళీ సపరేట్గా నేను చెప్పదలుచుకున్న వాటి జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. సరే, కుటుంబ సభ్యుల వల్ల ఆయన ప్రాణ ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆయన సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నాడు. సరే, అది సహజం, అందుకే ఆయన దూరంగా ఉంటున్నాడు వాళ్ళకు చుట్టూ పోలీసు పహారాల మధ్య అధ్యక్ష. సరే, అది వారి సమస్య అనుకోండి, నేను దాని జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. సో ఈరోజు ఎస్ఎల్బిసి పూర్తి చేసి ఉంటే वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गैर मुसल्लमा मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ियों को भी इंतबाह दिया है. यूट्यूबर युति की गिरफ्तारी के तनाजुर में वज़ीर आला ने कहा कि वो सहाफ़ी तंजीमों से भी अपील करते हैं कि मुसल्लमा सहाफ़ियों की फ़हरिस्त तैयार करें. अगर ये सहाफ़ी कोई गलत काम करते हैं तो वो ख़ुद इस बारे में फ़ैसला करें, लेकिन जो गैर मुसल्लमा सहाफ़ी है उनके ख़िलाफ़ तो मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी. అందుకే అధ్యక్ష, తమరు కూడా అక్కడి నుంచి ఆదేశాలు ఇవ్వండి. దీని మీద చర్చ జరగాలి. మీడియా మిత్రులకు కూడా నేను అడుగుతున్నా, మీ సంఘాలు ఏవైతున్నాయో సంఘాల నాయకులను కూడా అడుగుతున్నా, ఎవరో జర్నలిస్టులు లిస్ట్ ఇవ్వండి. జర్నలిస్ట్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏందో ఇవ్వండి, ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి. ఆ లిస్టులో ఉన్నోళ్ళు ఇట్లా తప్పు చేస్తే ఏం శిక్షిస్తారో మీరు నిర్ణయించండి. ఆ లిస్టులో లేనోడు జర్నలిస్ట్ కాడు, జర్నలిస్ట్ కానోడిని క్రిమినల్ కిందనే చూస్తాము. ఆ క్రిమినల్స్ని ఎట్లా జవాబు చెప్పాలనో గట్లనే చెప్తాం. ముసుగేసుకొని వస్తే ముసుగు ఊడవికి బట్టలు గుడ్డలు ఊడదీసి కొడతా అని చెప్తున్నా. నేను తమాషా చేయొద్దు. నేను కూడా మనిషిని, నాకు చీమునెత్తురుంది. అన్నిటికీ బరాయించుకుంటే తప్పులని అన్నిటిని మోసుకుంటే ఏదో కుర్చీలు ఉన్నా కాబట్టి ఊరుకుంటా అనేమన్నా ఏషాలు ఏదలుచుకోరా. అన్ని చట్టపరంగానే చేస్తా. చట్టాన్ని పరిధిని ఏం దాటను. ప్రతిదానికి ఒక శిక్ష, ఒక విధానం ఉంది. ఏది కూడా పరిధి దాటను, ఎందుకంటే నేను ముఖ్యమంత్రిని. చట్ట పరిధిలోనే అన్ని శిక్షలు ఉంటాయి. జర్నలిస్టులకు కూడా నా సూచన, ఎవరు జర్నలిస్ట్
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत रियासत को तेज़ी और गैर मामूली तरीके से तरक्की की सिमत ले जा रही है। असम्बली में रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है लेकिन उसकी तशहीर नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम की ये राय है कि अगर इन स्कीमों की और हुकूमत के कारनामों की मौसर तौर पर तशहीर हो तो कांग्रेस को रियासत में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भट्टी विक्रमार्का ने यह भी कहा कि BRS की साबिक़ा हुकूमत के मुकाबले कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने किसानों के कर्ज ज़्यादा माफ़ किए हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि KCR के हल्के गुजवेल में साल 2018 में BRS हुकूमत ने 104.3 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए थे और अब कांग्रेस हुकूमत ने 237.33 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए हैं। हरीश राव के सिद्दीपेट हल्के में 2018 में BRS ने 96.66 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया था और अब कांग्रेस की हुकूमत ने 177.91 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए हैं। నేను పల్లా రాజశేఖర గారికి నేను ఒక రకం ధన్యవాదాలు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. మీరు అవన్నీ అడగబట్టే మేము చేసి చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. లేకపోతే అసలు మేము అన్ని చేసుకుంటూ పోతున్నాం కానీ ప్రచారం చేసుకోవట్లేదు. చాలా మంది పాపం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు విపరీతంగా చేస్తా ఉన్నారు. సంవత్సరం నుంచి వచ్చి అన్ని చేస్తా ఉన్నారు కానీ సరిగా ప్రచారం చేసుకోవట్లేదు. అంతకుముందున ప్రభుత్వం ఏమి చేయకుండా ప్రచారం చేసుకొని 10 ఏళ్ళు బతికింది. వీళ్ళు చేసిన స్కీమ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ప్రచారం చేసుకుంటే వీళ్ళకి అసలు తిరిగే ఉండదని ప్రజలంతా అంటున్నారు. దయచేసి మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారం ప్రాంతాల అకౌంట్లతో సహా వారు పంపిస్తున్న అధ్యక్ష, వాళ్ళ గ్రామాల్లో కూడా డిస్ప్లే చేయమని చెప్పాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష సిరిసిల్ల BRS पार्टी के लीडर साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने आज असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर जी प्रसाद कुमार से अपील की कि सूर्यापेट के रुकन असम्बली जी जगदीश्वर रेड्डी की मुअत्तली को ख़त्म किया जाए। 13 मार्च को स्पीकर ने कुर्सी सदारत पर जगदीश्वर रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स को लेकर उन्हें मुकम्मल बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। నిన్న శాసనసభలో BRS పార్టీ శాసనసభ్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారిని సస్పెండ్ చేసిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. దాని విషయంలో దయచేసి మీరు పునఃపరిశీలించి జగదీష్ రెడ్డి గారిపై పెట్టిన సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలని చెప్పి అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. జగదీష్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కూడా మీ పట్ల అమర్యాదగా కానీ ఏకవచనాన్ని కానీ సంబోధించలేదు. మీరంటే మా అందరికీ కూడా ఎంతో గౌరవం. మా నాయకులు KCR గారు కూడా మీ ఎన్నిక జరిగినప్పుడు तेलंगाना खानसाज कौंसिल के अहाते में BRS पार्टी की तरफ से हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया गया। रुकन कौंसिल कविता की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। कविता का मुतालबा था कि फ़ी कुंटल हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादा भी किया था, इसलिए हल्दी की अक़ल तरीन कीमत 15,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तज़यीन के कामों का जायज़ा लिया। इंडियन रेलवेज़ की तरफ से अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेगमपेट रेलवे स्टेशन की भी तज़यीन का काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि इस स्कीम के तहत 1000 रेलवे स्टेशनों की तज़यीन की जा रही है। तेलंगाना में तकरीबन 40 क़दीम रेलवे स्टेशन की खूबसूरत गैरी की जाएगी। इस पर 32,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इसमें क्या डिफरेंस है रिजर्वेशन टिकट जनरल टिकट में? सिलसिलम SLBC टनल में फंसे वर्कर्स का हशर अभी तक भी मालूम नहीं हो पाया है। 22 फरवरी को टनल का एक हिस्सा मुनद्दम हुआ था। 8 वर्कर्स फंस गए थे। 10 मार्च को एक लाश निकाली गई थी, लेकिन बाकी वर्कर्स का कोई पता नहीं चल पाया है।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से शहर में हो रही इफ्तार पार्टियों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के कई मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। पानी का बड़ा जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कुरमागुड़ा इलाके में वाक़े मेराज मस्जिद के करीब मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शेख हसीबुल्लाह काशिफ ख़ान बरादरी की जानिब से इस दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। इस दावत इफ्तार में मजलिसी कॉरपोरेटर सलाम शाहिद, सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ अहमद, मंजूर अली नागढ़ के अलावा दीगर मौजूद थे। कैमरा आ जाना। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद नुआयत वाक़े शकरगंज की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में शालीबंडा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मैनेजिंग कमेटी अरकान सैयद अमीनुद्दीन, सैयद विखारुद्दीन, सैयद वजीहुद्दीन, मोहम्मद मुदस्सिर, सैयद अब्दुल उमर व दीगर ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर की कुलपोशी की। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक सैयद विखारुद्दीन कमेटी प्रेसिडेंट ने मेहमान खुसूसी और शुरा का खैर मकदम किया। इस मौके पर ताम बराए ख़ास व आम का भी अहतमाम किया गया था। खरीद में आया था बच्चे। हाँ इधर आप फोटो ले जल्दी आओ। फोटो आप भी जाइए।
मैं 2 मिनट रुको बोला था उनको बजा के लिए। और कौन है बच्चे चलाऊँ क्या? टीम इंडिया की जानिब से दुबई में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल जीतने की खुशी में सऊदी अरब के शहर रियाद में वाक़े चिंगारी रेस्टोरेंट में जश्न पर मबनी तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तमाम हिंदुस्तानियों को टीम इंडिया की जीत की और रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। चिंगारी रेस्टोरेंट के मालिक डॉक्टर शहरोज़ खान और सैयद आफ्ताब अली निज़ामी ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर केक भी काटा गया। रियाज में मोअज़्ज़िज़ तारिकीन हिंद की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने नारकोटिक्स ब्यूरो और आरपीएफ के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की और बरहमपुर से दादर स्मगल किए जाने वाले गांजा रैकेट को बेनकाब किया और 57 किलो से ज़ायद गांजा भी बरामद किया गया। इस बैन रियासती रैकेट में मुलविस 3 अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जो रियासत उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुतवत्तियान बताए गए हैं। जब्त शुदा गांजे की मालियत 28,50,700 रुपये बताई गई है। हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मंदिर के अकाउंटेंट पर मुबैना केमिकल नुमा एसिड फेंका गया है। इस वाक़े का सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक भूलक्ष्मी माँ मंदिर का अकाउंटेंट काम कर रहा था। अचानक एक शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और कुछ देर बातचीत के बाद एसिड फेंक दिया और फरार हो गया। मुकामी लोग भी जमा हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मुकामी वाक़े पर पहुँच गई। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ खबरें गश्त करने लगी। ज़ाफ़रानी तंजीमों के कारकुन भी मंदिर के पास जमा हो गए। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया। सीसीटीवी के ज़रिए एसिड फेंकने वाले की तलाश की जा रही है।
हैदराबाद की आबकारी पुलिस और इन्फोर्समेंट टीम ने कुल्फी, चॉकलेट और मिठाई में गांजे के इस्तेमाल का पर्दाफाश किया है। होली के मौके पर धूलपेट के इलाके में गांजा कुल्फी में चॉकलेट में मिलाकर फरोख्त किया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धावा किया गया। सत्यनारायण सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से गांजा, मिली हुई 100 कुल्फी और आइसक्रीम के अलावा 71 मिठाई कलेक्टरें भी जब्त किए गए। पुलिस ने सत्यनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लाल दरवाज़ा मंदिर के लिए किए मंजूर। अक़ामती स्कूल्स के मसाइल हल करने का दिया तयख़ून। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस का अख्तिताम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबाहिस का दिया जवाब। गैर मुसल्लिमा मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के सहाफ़ियों को दिया इंतबाह। BRS की अरकान असम्बली ने वज़ीर आला की तकरीर का किया बायकॉट। ऐवान में शोरगुल करते हुए किया वॉकआउट। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन की तज़यीन के काम का किया मुआयना। मुल्क भर में 1000 रेलवे स्टेशन की तज़यीन का काम जारी। मरकज़ी वज़ीर का बयान। बरहमपुर से दादर स्मगल किए जाने वाले बैन रियासती गांजे के रैकेट को किया गया बेनकाब। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।